मेरे चाहने वालों, क्या हाल चाल है भाई? ठीक हो? बढ़िया बढ़िया ही होने चाहिए भाई, एकदम बढ़िया होने चाहिए सारे लोग। वेरी एक्साइटिंग डे है आज, क्योंकि मुझे आराम नहीं मिला है। मैं भी 5-5:30 बजे उठना पड़ा है आज, क्योंकि हमारे गुरमीत भाई, परम पूज्य धर्म धुरंधर गुरमीत भाई નો સવાર નહીં કાલ સાંજે ફોન આવ્યો કે ભાઈ ટ્રીપ છે ઇન્ડિયાનાની, જઈ આવશો તમે? હવે એ તો માણસ લાલચી છે જ, પણ મારા દિમાગમાં બી લાલચ ઊભી થઈ જાય કે સાલું એકલો છું અત્યારે, ફરી મંગળવારે આવવાની છે, તો ત્યાં સુધી હું શું કરે? ગઈકાલે હું સવારે આવ્યો, બરોબર, રેગ્યુલર ટ્રીપ પતાવી જે હાઈવેની હતી એ, અને મેં તમને કીધું હતું કે છેલ્લી ટ્રીપ છે, હવે આપણે લોકલ આ તે બધું બરોબર। पर गुरमीत भाई ध्यान रखो भाई, गौर फरमाइएगा, गुरमीत भाई को अपने चैन नहीं है, उनको पैसा 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 चाहिए भाई। तो एमनी आदत મને લાગી ગઈ છે, અને એમનો ફોન આવ્યો કાલે સાંજે કે ભાઈ ઇન્ડિયાનાની એક ટ્રીપ છે, સોલો જવાનું છે, અને જઈને અને પછી સન્ડે પાછું આવવાનું છે, એટલે આજે સેટરડે થયો અર્લી મોર્નિંગ, અને સન્ડે પાછું આવતું રહેવાનું છે 10 અવર્સથી ત્યાં આગળ બ્રેક લઈને। તો મેં કીધું એકલો જવાનો હતો તો આમ તો કંઈ પ્રોબ્લેમ નહીં, ઘરે બી એકલો જ જવાનો હતો, પણ હા ઘરે રહીને હું એડિટિંગ કરવાનો હતો, મારા બ્લોગ્સને 2-3 રીલને એડિટ કરવાનો હતો, બટ હવે ત્યાં જઈશ તો પછી શનિ અને રવિ બંને જતા રહેશે દિવસો મારા જોડેથી, અને પછી આપણે ટાઈમ ઓછો બચશે એડિટિંગ માટે। શનિવારની સવાર આજે તો ભાઈ હું જઈ રહ્યો છું અત્યારે ચેલેન્જરના યાર્ડમાં, જો કે કેમ્બ્રિજમાં ઓન્ટારિયોમાં છે, અને ત્યાંથી આપણે ટ્રક અને ટ્રેલર ઉઠાવવાનું છે। ફેડેક્સનો રન છે અહીંયાથી કેમ્બ્રિજ ઓન્ટારિયોથી સીધા ઇન્ડિયાનાપોલિસ USA, અને ત્યાંથી પછી બફેલોથી પાછું જે આપણે ફોર્ટ એરીવાળી જે બોર્ડર છે એ ક્રોસ કરીને પાછું કેનેડામાં આવીને આવતીકાલે કેમ્બ્રિજમાં ટ્રક મૂકી દેવાની છે। ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ, એમનું બી વર્કઆઉટ થઈ ગયું, એમનું બી કામ સચવાઈ ગયું, અને મારું બી કામ સચવાઈ ગયું। ऐसा ही होता है भाई, देखो अपने ओनर को, अपने बॉस को, या जो भी हो, खुश रखो भाई, क्योंकि वो भी पैसा कमाने बैठे हैं, हम भी पैसा कमाने बैठे हैं, ठीक है। આપણને જ્યારે એટલા મોકા આપતા હોય કે ભાઈ કમાઈ લે રાઈટ, અને પછી આપણે આનાકાની કરીએ ના યાર આજે મારે આ થાય છે, આજે મારે પેલું, જેન્યુન રીઝન હોય નો પ્રોબ્લેમ, ના પાડ દો, બિંદાસ એ સમજી શકે છે। મારા કેસમાં એવું જ હોય છે, જ્યારે મારાથી બનતું હોય ત્યારે મેં કદી એમને ના નહીં પાડી, આપણા મોઢેથી ના નીકળવી જ ના જોઈએ, કરવાનું છે ઓકે, ફ્રી છું આવી જઈશ, નો પ્રોબ્લેમ, એવી વાત। અને એમનો ફોન સૌથી પહેલો આપણા ઉપર જ આવે, જ્યારે બી કોઈ બી શિફ્ટ કવર કરવાની હોય, કે કોઈ એક્સ્ટ્રા લોડ હોય, કે કોઈ ડ્રાઈવરે રજા લીધી હોય અચાનક, તો પહેલો ફોન મારા ઉપર આવે કે ભાઈ દીપેનભાઈ તમે ફ્રી છો? તો પહેલાં તમને ચાન્સ, પછી બીજા બધાને ચાન્સ, એવી રીતે। એટલે તમે આ કેવો ભાઈ સામે વિડીયો પીવી પડે, તમે જેવું સાચવશો એવું તમને સાચવશે બોસ, રાઈટ। એનીવેઝ આ બધી તો વાત થતી રહેશે। ઓલમોસ્ટ કેમ્બ્રિજ આવી ગયું છું, અને હું વાતમાં તમારા જોડે પૈસા ગાવત બ્રેક કેમ માર રહે હો? દેખો ગાઈસ, આને બ્રેક મારી છે એના માટે મારી, જો આટલી ખેંચીને, આ સાહેબ માટે, આર્યા સાહેબ, બધા અમને બહુ લાડ કરે છે, પણ આપણને એવી કોઈ સ્પેશિયલ ફિલિંગ છે નહીં। એનીવેઝ ભાઈ કેનેડા છે, અહીંના રૂલ્સ ફોલો કરવો પડે, એ ઊભો રહ્યો તો આપણે ઊભું રહેવાનું, એમાં કોઈ આપણે પ્રોબ્લેમ નથી। આ તો હું જસ્ટ તમને કહું છું કે આવી રીતે એક બર્ડ માટે બી તમે ટ્રાફિક રોકી શકો કે ભાઈ ના આપણે નહીં હટીએ, પહેલાં બર્ડને જવા દઈએ। જબરદસ્ત ધુમ્મસ છે આજે ગાઈસ। જો આ સ્પોટ છે ને મારે ટ્રાન્સફર કરવા માટે, ખાલી તમારા સામાન ટ્રકમાંથી ટ્રાન્સફર કરવો હોય ગાડીમાં, એના માટે આવી ગયા ભાઈ બેક ટુ પેવેલિયન। બહુ બધા ટાઈમ પછી ચેલેન્જરમાં અહીંયા આવ્યો। એક હું વુડસ્ટોકથી ચાલુ કરતો હતો ને ટોયોટાના રન, તો એટલું બધું અહીંયા આવવાનું થતું નહોતું, પણ જો નાઇસ ટુ બી બેક। પેલી બધી ટ્રકો કેટલી બધી પડી, મોસ્ટલી હવે બધી ઓનર ઓપરેટરની ટ્રકો થઈ ગઈ છે ગાઈસ। ઓકે, જો ડ્રાઈવર સર્વિસ આવી ગયું ભાઈ। એક જમાનો હતો જ્યારે હું અહીંયાથી વ્લોગ ઉતારતો હતો, કંપની ડ્રાઈવર હતો, મારી પાસે કેનવર્થ કરીને ટ્રક હતો T680। બેક હોમ। रॉब कितने बैठो जो छिलने बैठो सर। ऑल सेट भाई, ये वाला ट्रक है, हमें ले जाना है इंडियाना से बफेलो, बफेलो से वापस कैम्ब्रिज। ट्रेलर मैंने हुक कर लिया है,
और सारी लाइटें वाइटें सब कुछ चेक करके इंस्पेक्शन कर लिया है पूरा। अब मुझे ये वाला फिल आउट करना है। कस्टम का पेपर वर्क जो होता है ना, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए चाहिए होता है, वो फिल आउट करना है। और ये वाला जो पेपर है मैं फिल आउट करने वाला हूँ बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। ट्रेलर एम्प्टी है, तो फेडेक्स का जो रोलर वाला जो ट्रेलर आता है ना, रोलर बेड बोलते हैं उसको, जो नीचे रोलर होते हैं ऊपर रैक्स उसको सरकाते हैं, तो वो वाला ट्रेलर लेके जाना है। ये खाली वाला ट्रेलर वहाँ पे ड्रॉप करना है, वहाँ से लोडेड ट्रेलर पिकअप करके वापस आना है। आपको नहीं पता हो तो मेम्फिस में टेनेसी मेम्फिस और इंडियानापोलिस, वो सारे बिग हब है फेडेक्स के लिए। जो भी सारे पार्सल जो भी कुछ आता है वो पहले वहाँ पे आता है वाया एयर, एंड फिर वहाँ से सारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो पिकअप करने जाना है हमें। सबसे पहले मैं कस्टम का पेपर वर्क फिलअप कर देता हूँ। पिकअप मैंने यहाँ पे सारा कुछ डन कर दिया है सिस्टम में, बस ये करके सिर्फ हमें निकलना है। अच्छा ये देख लो, ये वाला कैनवर्थ, अगर आपको मेरे पुराने ब्लॉग मैंने देखे हैं मेरे, तो आपको पता होगा ऐसा ही कैनवर्थ था मेरे पास। और ये सारी डिजिटल स्क्रीन वाला सारे गेजेस सारा यही कुछ दिखा देता है, यहाँ पे कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी यहाँ पे एक्स्ट्रा गेजेस दिए हुए हैं जो कि एनालॉग है, पर ये सारा कुछ यहाँ पे डिजिटल है। ये डिजिटल है और ये एनालॉग है, ठीक है। ब्रेक के लिए, जनरेशन के लिए ऑयल टेम्परेचर, बूस्टर, सस्पेंशन का जो प्रेशर होता है वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो जितनी ज़्यादा भाई सिस्टम जितनी ज़्यादा है ना, वो एलईडी वेलईडी सब कुछ सेंसर जितने ज़्यादा उतने ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। मुझे तो एनालॉग पसंद है ज़्यादा, बट प्रेफरेंस होते हैं सबके। मैं ये फिल आउट कर देता हूँ और फिर यहाँ से जल्दी से निकलते हैं भाई। चलो, कैनवर्थ T680 खतरनाक ट्रक है भाई। मुझे सबसे ज़्यादा यही वाला ट्रक पसंद है, एकदम भारी, एकदम स्टेबल, हिलता नहीं है भाई, मचक नहीं देता है कहीं पे। कौन से भी टर्न में किसी भी कर्व पे चले जाओ आराम से मुड़ता है मस्त। एक इसकी जो बात है वो सबको नहीं पसंद है, जो इसका टर्निंग रेडियस है। इसका जब व्हील घुमाते हो और जब टर्न लेते हो, और वॉल्वो का घुमाते हो और जब टर्न लेते हो, तो वॉल्वो बहुत शार्प टर्न ले लेता है, बहुत जल्दी घूम जाता है, बट ये थोड़ा लंबा जाता है। मतलब कि इसकी जो टर्निंग रेडियस है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू पीटर बिल्ट, वॉल्वो क्या अपना जो फ्रेटलाइनर, वो सारे ट्रक के कंपेयर में इसका थोड़ा ज़्यादा रहता है। बट मुझे ये पसंद है क्योंकि कंफर्ट है भाई, और लगता है कि ट्रक चला रहे हैं, क्योंकि एकदम बड़ी सी लाइक हैवी फीलिंग आती है जब ये चलाते हैं ना। तो इसका स्टेयरिंग, इसका ये हुड, इसका जो ये चौड़ापन है, ये सारा कुछ बहुत मस्त लगता है। मैं तो भाई फ़ैन हूँ इसका। कैसी लग रही है भाई वीडियो? अगर मज़ा आ रहा है तो जल्दी से लाइक बटन दबाओ और सब्सक्राइब करो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो। ट्रकिंग टेल्स को हमें बहुत आगे लेकर जाना है, और अगर आपकी हेल्प रही तो हम जाएंगे भाई, बिल्कुल जाएंगे। तो मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, बस आपकी हेल्प की ज़रूरत है भाई, ठीक है। कितने बजे निकला हूँ मैं वहाँ से? 9 बजे के आसपास। 9 बजे के आसपास वहाँ से निकला हूँ, अपना जो टीम होटल था वहाँ से। अभी बजे है समवेयर अराउंड 3 नहीं 4 बज गए भाई। तो ना भाई 7 घंटे हो गए। पहली बार इतना लंबा खींचा है मैंने, 6.5-7 घंटे के आसपास खींचा, और अब जाके मैंने ब्रेक लिया क्योंकि मुझे 30 मिनट ब्रेक लेनी पड़ेगी। मैं नहीं पहुंच पाऊंगा इंडियानापोलिस उससे पहले, क्योंकि अभी 1 ही घंटा बचा है ड्राइव करने के लिए। उससे पहले मुझे हाफ आवर की ब्रेक चाहिए, और जब हाफ आवर की ब्रेक लूँगा तब मेरे 2 आवर और बढ़ेंगे, तब जाके टोटल 3 होंगे, एंड देन मैं 1.5 घंटे में यहाँ से पहुँच जाऊँगा। तो ये सीन है भाई, इसीलिए हमें हाफ आवर की ब्रेक लेनी पड़ती है, क्योंकि यूएस में आप कंटिन्यूस 8 घंटे के लिए ही ड्राइव कर सकते हो। उसके बाद या उससे पहले आपको हाफ एन आवर की ब्रेक लेनी पड़ेगी टू गेट 11 आवर्स इन टोटल। मतलब कि 8, 9, 10 और 11 3 घंटे और बढ़ जाएंगे जब आप हाफ आवर की ब्रेक ले लोगे तब। तो टोटल इन 24 आवर की साइकिल जो होती है उसमें आपने 11 घंटे ड्राइव करना है, और 11 घंटे ड्राइव करने के बाद आपको 10 घंटे की ब्रेक लेनी पड़ती है। तो ये सारा आवर्स ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं इसको। जब आप ट्रकिंग में आते हो तो आपको ये सब सारा सिखाया जाता है कि आपके मैनेज कैसे करते हैं ये आवर्स, बट ये मैंडेटरी होता है डीओटी के और एमटीओ के रूल्स के मुताबिक हमें ये फॉलो करना पड़ता है। अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो हमें टिकट आ सकती है, फ़ाइन लग सकता है, और लाइसेंस भी जा सकता है अगर कई बार हो गया, या फिर कुछ मेजर हो गया ना प्रॉब्लम,
तो फिर लाइसेंस भी आप गंवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होती है। इंडिया में मैंने देखा भाई बंदे चला रहे हैं और ऐसा कोई रूल वूल है या नहीं है वो भी मुझे नहीं पता, बट मैंने एक दो ड्राइवरों से बात करी थी। वो बोलते हैं कि भाई जितनी नींद हुई नहीं हुई, जब निकलना पड़ता है तो निकलना पड़ता है, और जब डिलीवरी करनी होती है तो करनी होती है। उसमें फिर कोई पीछे देखना नहीं होता है कि भाई कितने घंटे चलाए कितने घंटे नहीं चलाए, बस। तभी तो यार एक्सीडेंट सारा कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, कि ड्राइवर की नींद नहीं पूरी होती है। तो बॉडी को आराम चाहिए भाई, तभी आप इतना बड़ा व्हीकल जो है 53 फीट का ट्रेलर और फिर हमारा 15-20 फीट का वो ट्रक, दोनों मिला के 70 के आसपास होता है, तो तभी इतना लंबा आप चला सकते हो, राइट। नहीं तो अगर समझो कि 100-105 की स्पीड पे जा रहे हो आप, अगर आपको एक हाफ सेकंड के लिए भी, अगर आपको स्प्लिट सेकंड के लिए भी आपको अगर नींद आ गई या फिर आंख बंद हो गई, तो ये ट्रक कहाँ का कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, और आप नीचे डिच में जाओगे या सामने की लेन में चले जाओगे, आपको नहीं पता लगेगा। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, तभी ये सारे रूल्स बनाए हुए हैं यूएस एंड कनाडा में, और ये सारा हम फॉलो कर रहे हैं। अभी मैं हूँ इंडियाना में, एक रेस्ट एरिया आया है, वहाँ पे रुक रहा हूँ 30 मिनट की ब्रेक के लिए। उसके बाद यहाँ से मैं ड्राइव करना शुरू करूँगा। 1.5 घंटे में मैं अपनी लोकेशन पे पहुँचूँगा और वहाँ जाके 10 घंटे की ब्रेक लूँगा, क्योंकि मैं आज अकेला ड्राइवर हूँ, सोलो ड्राइवर हूँ, दूसरा टीममेट नहीं है मेरे पास। तो मुझे 10 घंटे की ब्रेक लेनी पड़ेगी, ट्रक वहीं पे रुकी होगी, और फिर मैं 10 घंटे के बाद फिर से ड्राइव करना शुरू कर पाऊँगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि मेरी क्लॉक में कितना टाइम हुआ है। देखो यहाँ पे मेरी लॉग बुक है, ठीक है, आपको दिखाई देगी ये वाली लॉग बुक। अब जैसे मैंने यहाँ पे 6 घंटे चलाया, 2-3 घंटे, 2 घंटे 1.5 घंटा यहाँ पे चलाया, राइट, ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी सब कुछ। तो अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 आवर एंड 16 मिनट ड्राइविंग का टाइम बचा हुआ है। बट उससे पहले मुझे यहाँ पे 1 घंटे में 30 मिनट की ब्रेक लेनी है। 1 घंटा 16 मिनट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, वो ख़त्म होने से पहले मुझे आधे घंटे की ब्रेक लेनी होगी। 10 मिनट हुई है, ठीक है, अभी 19 मिनट बाकी है। ये वाली यहाँ पे लिखा हुआ है ना ब्रेक, तो ये ब्रेक है, 19 मिनट बाकी है उसमें। जैसे 19 ख़त्म होगी तब जाके ये जो अपना ड्राइविंग बिफोर ब्रेक है ना, जो 1 घंटा 16 मिनट है, वो टोटल 4 घंटा 16 मिनट हो जाएगा। तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अगर आप व्लॉग देख रहे हो, आपको अगर नहीं पता है तो ये थोड़ा मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूँ। बाकी जब आप लाइसेंस लेते हो क्लास ए या CDL यहाँ पे यूएस में, या फिर AZ लाइसेंस ओंटारियो में, जो भी ट्रकिंग का आप लाइसेंस लेते हो, तो आपको सारा कुछ क्लास में सिखाया जाता है कि कैसे आवर्स वर्क करते हैं, कैसे आपको मैनेज करना होता है सब कुछ। तो बस भाई खाना खा लेता हूँ थोड़ा। घर से राइस लेकर आया हूँ, जो गुजराती में वघारेला भात कहेवाय, एंड ए थोड़ું યોગર્ટ છે, થોડું દહીં છે જોડે, તો રાઈસ અને યોગર્ટ થોડું ખાઈશ અને પછી આપણે ड्राइव करवाना शुरू करिए। यही है भाई सोलो ट्रिप में मज़ा आता है, क्योंकि आप जब पार्क करते हो, जब आप ऑफ ड्यूटी जाते हो, स्लीपर में जाते हो, तो आपको चालू ट्रक में नहीं सोना पड़ता। जैसे कि मैं पिछले 1.5-2 साल से मैं टीम में कर रहा था, तो टीम में क्या होता है कि जब दूसरा ड्राइवर चला रहा है तो हमें सोना है वहाँ पीछे जो बंक है वहाँ पे, और मैंडेटरी सोना है। बिकॉज जैसे ही इसकी शिफ्ट ख़त्म होगी, ये जो यह बंदा ड्राइव कर रहा है, उसकी जब जैसे ही ख़त्म होगी ना, मुझे ड्राइव करना शुरू करना है, क्योंकि ट्रक रुकना नहीं चाहिए। यही मोटिव होता है टीम ड्राइविंग का। सोलो में मैं पहले भी सोलो करता था और सोलो में मज़ा भी आता था, बट सोलो में पैसे थोड़े कम बनते हैं, टीम में थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये सारा डिपेंड रहता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप कौन से स्लैब में फिट होते हो। आपको ज़्यादा पैसा चाहिए तो आप उसमें जाओ, आपको कम पैसा चाहिए बट आपको आराम की नींद चाहिए, आराम का रेस्ट चाहिए, कोई दिमाग पे प्रेशर नहीं चाहिए, तो आप सोलो कर सकते हो। बाकी और कोई ट्रेलर है, ये ड्राइव-इन है, फ्लैट बेड है, बाकी सारे भी रीफर होता है, उसमें भी पैसे बनते हैं, जिससे आप थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा बढ़ा सकते हो अपना जो फाइनेंशियल वो होता है स्टेट्स वो। बट कुल मिला के यही सीन है कि घर से बाहर रहना पड़ता है, और ये हमें अब चाहिए नहीं। तो ये वाली हमारी लास्ट ट्रिप होगी। मैं ये कह तो रहा हूँ पर मैं भी श्योर नहीं हूँ अभी, क्योंकि लास्ट ट्रिप करते 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 भी 2-3 लोग आ गए अपने हाईवे के, और अभी तक अपना क्या बोलते हैं वो लोकल का शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि वो नेक्स्ट वीक में शुरू होने वाला है।
तब तक जितना भी टाइम मिल रहा है वहाँ पे मुझे गुरमीत भाई या परमजीत भाई कहीं ना कहीं फिट कर रहे हैं कि भाई ये करके ले लो, ये करके ले लो, ये करके ले लो। तो मेरे माइल्स हो रहे हैं अभी, और अभी परी भी नहीं है तो मैं कर रहा हूँ, बट परी आ जाएगी उसके बाद नहीं हो पाएगा। तो अभी फ्री हूँ तो मैं मना भी नहीं कर रहा, बट जब फ्री नहीं हूँगा तो मैं बोल दूंगा कि भाई नहीं अब नहीं होगा, अपना सेट कर लो, जो लोकल की बात हुई थी वो हो जाएगा फिर रूटीन। તો હવે નીકળી અહીંયાથી, કારણ કે બહુ વધારે ટાઈમ પાસ નહીં કરવાનો, આપણે બહુ કટ ટુ કટ ટાઈમે જ છીએ આજે। તો હરિઓમ નમઃ શિવાય ભાઈ। એટલે આ વરસાદ તો બંધ જ નહીં થતો ગાઈસ, સવારનો પડપડ કરે, સવારના પંખા ફાસ કરેલા હતા વાઇપરના આપણે, બિચારાના આરામ જ નહીં હોય। એનીવેઝ ચાલો નીકળીએ ભાઈ। भाई साहब आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी लंबी लाइन है। वहाँ पे आपको दिख रहा है सामने, रुको इसको थोड़ा एडजस्ट होना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको दिख रही है सामने लाइन, तो वहाँ पे है ऑफिस जहाँ पे चेक इन करना होता है फेडेक्स का। एयरपोर्ट पे है, इंडियानापोलिस का जो एयरपोर्ट है ना, वहीं पे है फेडेक्स का ऑफिस। वहाँ पे चेक इन करना है। वहाँ से लेकर ये स्टॉप साइन पे मैं रुका हुआ हूँ, यहाँ तक लाइन है। ये ट्रक खड़ी रही है, ठीक है, और 2 3 4 ट्रक वहाँ पे सामने खड़ी है, और मेरे पीछे कोई है नहीं। मुझे फ्लैशर लगा के खड़ा रहना पड़ा है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पीछे गाड़ियों की लाइन लग रही थी। उनको लगा कि मैं स्टॉप साइन पे खड़ा हूँ, बट फिर मैंने फ्लैशर लगा लिया तो वो सारे मेरे घूम के आगे जा रहे हैं। यहाँ पे स्टॉप साइन है आगे, देखो वो सारे ट्रक को पास कर करके रॉन्ग साइड से आ रहे हैं। इतना ट्रैफिक है भाई, पता नहीं कितना टाइम लगेगा वहाँ पे पहुँचने में मुझे। ये ट्रक मेरे पहले आया हुआ था, तो ये भाई आ गया मेरे आगे, और अब इसको तो नहीं आने देना है। अब ये भाई रुकेगा, इसको रुकना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरी बारी है, भाई की बारी है, भाई की बारी है। और ये यहाँ पे हाईवे है। भाई जल्दी कर लो भाई, सोना है, मुझे नींद आ रही है। भाई साहब 3 माइल पर आवर की स्पीड पे क्रॉल करते करते एकदम धीरे धीरे वहाँ से आया हूँ मैं, ब्रिज के उस पार से यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मेरी क्लॉक में आवर्स नहीं थे और सुबह रीसेट होने में बहुत टाइम था। अभी अगर ट्रक चला के आता तो मेरी क्लॉक रन हो जाती और मैं वायोलेशन में चला जाता। तो मैं धीरे धीरे करके यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे मैंने पार्क करा है, ये वाला ट्रक अपना है, और ये है जो फेडेक्स का एम्प्लॉय पार्किंग है। अंदर भी पार्क कर सकता हूँ, पर अंदर बहुत अंदर जाना पड़ेगा। उन्होंने मुझे पास दिया है कि ये पास सिक्योरिटी को दिखा देना, आप अंदर जाके पार्क कर सकते हो, रात को सो जाओ और सुबह 3 बजे 4 बजे जब भी आ रहा है आके वो वाला पिकअप कर जाना, तब तक रेडी हो जाएगा आपका। पर मैं बोला वहाँ पे जाऊँगा क्रॉल करते करते 3 माइल पर आवर की स्पीड से, तो फिर बाहर आने में भी उतना टाइम लग जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पे ही पार्क कर लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ से सीधा स्ट्रीट पे चला जाऊँगा लेफ़्ट लगा के, और सीधा फेडेक्स के वो जो यार्ड है वहाँ पे चला जाऊँगा। तो वैसे करके मैं यहाँ पे आया हूँ। अब सो जाऊँगा, नहीं पहले खाना खाऊँगा, सॉरी खाना भूल ही गया, खाना खाऊँगा उसके बाद सो जाऊँगा। सुबह 3 या 4 बजे उठूँगा और हाथ मुँह धो के और सीधा ट्रेलर उठाऊँगा, ट्रेलर उठा के जाऊँगा ट्रक स्टॉप से शावर लेके, और फिर मैं अपना बफेलो से कैम्ब्रिज ओंटारियो। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मुझे भी नींद आ रही है, बहुत गंदी नींद आ रही है। जो आपको ट्रैफिक पहले बताया था ना मैंने, वहाँ पे पौना घंटा लग गया मेरा। तो मैंने वहीं पे थोड़ा राइस गर्म करके खा लिया, अभी अधूरा है तो थोड़ा और खा लूँगा और फिर सो जाऊँगा। तो यही सीन है भाई, नींद बहुत आ रही है। तो ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। અને મળીએ બધાને। તો ગુજરાતી હિન્દી બધું મિક્સ બોલતો રહે એટલે બધાને મજા આવે ભાઈ। આપણે કંઈ એવું નહીં કે ભાઈ હિન્દી જ બોલો કે ગુજરાતી જ બોલો। ગુજરાતીવાળાને ગુજરાતી समझ में आवे, हिंदीवाળाने हिंदी समझ में आवे। जिसको कुछ ना आए वो खाली वीडियो देखे और मौज करे, ठीक है। तो अगर आ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, અને
કમેન્ટમાં કહો કે શું પસંદ આવ્યું, કમેન્ટમાં કહો કે આગળ શું કરવું જોઈએ. તો પ્લીઝ મહેરબાની કરું, પગે પડું, હાથ જોડું, સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને લાઈક કરવાનું ના ભૂલતા મહેરબાની કરીને. અને મળીએ આપણે આવતી વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી હરિઓમ નમઃ શિવાય અને નમો પાર્વતી પતે. હર હર મહાદેવ હર.